third point of application, that is magnetic field. Solenoid. A solenoid is a long wire wound in a close-packed helix carrying a current I, and the length of the solenoid is much greater than its diameter. The magnetic field B is nearly uniform and parallel to the axis of the solenoid at interior points near its center, and external field is very small. If N is the number of turns per unit length in a solenoid, then the number of turns in length L is the total current passing through the rectangle ABCD is NLI, and from Ampere's law we can write special points. Larger the number of turns on the solenoids, larger will be the magnetic field. More the strength of current, more will be the magnetic field. The direction of the field is given by the right-hand rule. The solenoid is commonly used to obtain a uniform magnetic field. Fleming's right-hand rule. Stretch the finger and thumb of the right hand so that they are perpendicular to each other. If the fingers point in the direction of current I and the palm in the direction of the field B, then the thumb will point in the direction of force. Fleming's left-hand rule. The forefinger, the middle finger, and the thumb of the left hand are stretched in such a way that they all are mutually perpendicular to each other. Then the forefinger points in the direction of the field B, and the middle finger points in the direction of the current. The thumb will point in the direction of the force. Toroid. A torsional solenoid is a hollow circular ring with a large number of turns of a wire carrying current wound around the ring. In this case, Amperion loop would be a circle through point P and concentric with the toroid. By symmetry, field will have equal magnitude at all points of this circle, and this field is tangential to every point in the circle. So, integral B dot dl is B integral dl is 2 pi rb. The total number of turns are n. The net current crossing the area bounded by the circle is Ni, where I is the current in the toroid. Using Ampere's law and solving it further, we get: imagine concentric circles passing through points P, S and Q as shown in the image. The net current passing through this circular disc is 0, since the current Ni passes in and same current passes out. Thus, using Ampere's circuital law, the field B is 0 outside and inside the toroid at the circle passing through the points Q and P respectively. Due to a toroid. Now the problem is what the toroid is. This is the problem. So basically, toroid is a circular metallic ring-like structure on which the insulated copper wire is having many turns which are very close to each other, means very closely placed number of turns on a circular metallic ring is called toroid. ये simply आप ये कह सकते हो कि this is a solenoid whose two ends are meeting. मतलब कि
आप एक मैं आपको सबसे पहले तो फिगर दिखा दूं जिससे आप कंफर्म हो जाए कि ये दिखता कैसा है। दिस इज इट्स एक्चुअल पिक्चर। दिस इज क्लोराइड, यू कैन वॉच इट। आप देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये जो आपका कॉपर कलर का दिख रहा है, ये इंसुलेटेड कॉपर बनाया जाता है। दिस इज व्हाट टोराइड। अब अगर इसका स्कीमेटिक फिगर लेते हैं, तो वो स्कीमेटिक फिगर मतलब एक जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं वो कुछ इस तरह का होगा। ये है आपका क्या कहते हैं, टोराइड। तो इस टोराइड को अगर आप कहीं से काट दीजिए, मान लीजिए कट करके इसको ओपन कर दें, तो ये बिल्कुल सॉलिनाइड हो जाएगा। इसलिए टोराइड के बारे में ये कहा जा सकता है कि टोराइड इज एन एंडलेस सॉलिनाइड। एंडलेस इसलिए क्योंकि आपने इसके दोनों एंड्स को जो आपका सॉलिनाइड है इसके दोनों एंड को मिला दिया, इसलिए इसे एंडलेस सॉलिनाइड भी कह सकते हैं। एक और जो डेफिनेशन दे सकते हैं आप, वो ये दे सकते हैं कि टोराइड is made of a circular ring-like structure on which insulated wire is wound with very closely spaced turns। आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा डेफिनेशन दिया गया है, वो मुझे लगता है ज्यादा आपको रिवील करेगा, अपील करेगा। एक बार मैं उसे भी उसे भी आपको दिखा दूं तो ये है आपका a toroid is a hollow circular ring on which a large number of turns of a wire are closely wound। मतलब जो अभी मैंने लिखा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये पॉइंट है आपका, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का आप कह सकते हैं कि a toroid is a hollow circular ring on which a large number of are found। ये भी है, ये भी सही है, और हमने लिखा है ये भी कुछ वैसा ही है। तो अब हम इस फिगर को फिर से लेते हैं और हम जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोराइड फाइंड आउट करने। जब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोराइड फाइंड करेंगे, तो आप देखिए मेरे पास तीन जगहों पे पॉइंट्स हो सकते हैं। तीन पॉइंट्स, वन पॉइंट इज हियर इन ओपन स्पेस। ओपन स्पेस मीन्स मतलब आपके टोराइड के बाहर। एक यहाँ पे लिया जा सकता है, इस जगह पे, आप इसे पॉइंट क्यू बोल सकते हैं, और एक इसके अंदर किसी जगह पे लिया जा सकता है। अब आप इसे क्या बोलेंगे, पी क्यू आर ले लें? नहीं, पी क्यू आर बजाय आप ऐसे। तो मैं इस फिगर को एक बार फिर से कैरी ऑन करता हूं।
और ताकि हाँ अच्छे से इसको डिजाइन कर। टेस्ट नहीं हो रहा है मेरे से, कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से ले लेते हैं यहाँ पे यही वाला फिगर। ठीक है, थोड़ा छोटा करके लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि मेरे पास फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन है एंड थर्ड रीजन है। इन तीनों जगहों पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर। तो अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जाऊंगा तो आप समझिए कि मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ चाहिए। एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए सबसे पहले मुझे पॉइंट से जाता हुआ एम्पीरियन पाथ चाहिए होगा। उस एम्पीरियन पाथ के अंदर से जितनी करंट रील आउट होती होगी, जितनी करंट थ्रेड आउट होती होगी, हम उसका म्यू नॉट टाइम तो अब देख, पहले तो मैं इसे मान लूं कि ये है क्या। लेट अस कंसीडर अ टोराइड of number of turns per unit length, क्योंकि ये मानना जरूरी है, स्मॉल n and of radius e. Now if it carries a current I through the wire, then magnetic field in region 1 can be calculated by Ampere law. ओके, अब एम्पियर लॉ को लागू करने के लिए मुझे चाहिए होगा इसका क्रॉस सेक्शन। जैसे मैंने किसके केस में लिया था, आप कह सकते हैं सोलिनॉइड के केस में। आप देखिए, मैंने सॉलिड का क्रॉस सेक्शन लिया और फिर हर वायर का क्रॉस सेक्शन दिखाया था। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, क्रॉस सेक्शन लूंगा। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि ये मेरे पास एक हाथ से खींच लेते हैं। देखिए, ये हो गया सोलिनॉइड का कि रिंग का दूसरा हिस्सा। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने अगर वायर लपेटा है तो आप जब कट करोगे तो ये वायर यहाँ से भी कट हो जाएगा, यहाँ से भी कट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी वायर का क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, यहाँ पर भी दिखाई देगा, यहाँ पर भी दिखाई देगा, यहाँ पर भी दिखाई देगा। इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शंस आपको दिखते रहेंगे जैसे वहां सोलिनॉइड में दिख रहे थे।
इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शंस आपको वायर के दिखते रहेंगे। अब आपने रीजन 1 में, ये आपका रीजन है, आपने एक पॉइंट ले लिया है। इस पॉइंट पे आपको चाहिए क्या कहते हैं, एक एम्पीरियन पाथ। एम्पीरियन पाथ, अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ ऊपर की फिगर में आप देखिए, करंट ऊपर से यहाँ आता है इस तरफ, और फिर यहाँ से पीछे जाता है, और पीछे से जाके ये आगे से निकलता है, फिर ये पीछे जाता है, फिर आगे से निकलता है, ऐसे। अब देखिए, यूं जाता है और फिर पीछे जाता है और फिर आगे निकलता है, फिर आगे निकलता है, फिर आगे निकलता है। यानी ऊपर से ये इधर को आता है और नीचे से ये पीछे को जाता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर जो नीचे की करंट है, मैं उसको अगर पॉजिटिव मानता हूँ, अगर यहाँ की करंट को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, पीछे जाने वाली करंट को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, तो आगे आने वाली करंट को मैं निगेटिव मानूंगा। अब जब आप एम्पीरियन पाथ डिसाइड करोगे, तो फिर आप इस पूरी करंट को क्या करोगे, घेरने के लिए एक सिमेट्रिकल सरफेस सॉरी पाथ दिखाओगे। ये तो ये बन जाएगा आपका एम्पीरियन पाथ। एम्पीरियन पाथ क्या होता है, सिमेट्रिक टू द करंट होता है, रीलिंग करंट होता है, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, पासिंग थ्रू द पॉइंट जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। अब मैं जा रहा हूं कंसीडर करने कि जो मेरा पॉइंट P है वो यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो फिर आप ये कह सकते हैं बाई एम्पियर सर्किट लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट ds B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। अब मान लो कि यहाँ पे कुल टर्न्स अगर कैपिटल N है, कुल, यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर मैं मान लेता हूं कि पूरा जितना लपेटा गया है, नॉट पर यूनिट लेंथ, अभी मैं पूरा ही मान लेता हूं, तो वो हो गया कैपिटल N। अब इसका मतलब मेरा ये नीचे वाला जो करंट होगा वो टोटल करंट होगा प्लस Ni, और ऊपर यहाँ वाले सरफेस की करंट होगी माइनस Ni। तो देखिए कितना होता है, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल रीलिंग करंट कितनी हो जाएगी, प्लस Ni माइनस Ni, एंड दैट इज 0। सो क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl, अब ऑब्वियस सी बात है कि दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इनमें से एक चीज 0 होगी, इसलिए B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। So in open space, there is no magnetic field. In outer region of a toroid, there is no magnetic field. समझ में आया भाई? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे। पार्टिसिपेंट्स कुछ पूछना है? हाँ बेटा, हाँ स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ। हाँ हाँ, आप लोगों की अगर कोई डाउट है मन में, कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है, तो वो आप पूछ सकते हो कि हाँ ये कैसे हो गया। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 एप्लीकेशन है इसके, और 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन आ ही जाता है, और एक वो वाला है जो इससे पीछे बायट सावर्ट वाला, रिंग वाला। सर डायग्राम में जो सेंटर में NIN लिखा है वो क्या है, प्लस NIN? ये NIN नहीं है, NIN नहीं है, मैंने सबसे पहले लिखा था कि N है, N इज द नंबर ऑफ टर्न, आप इसे नहीं रखिए, ठीक है। NI का मतलब टोटल करंट गोइंग अच्छा वो बैक मुझे पता ऑफ द टोराइड। हाँ इनटू करंट।
सर इसके जो साइन कन्वेंशन लिया है प्लस माइनस, वो कैसे वो है? आप कोई सा भी ले सकते हो, इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं है। मैंने जानबूझ के लिया है कि जो बैक ऑफ द टोराइड जाएगा उसे हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो नीचे से मतलब पीछे से आके आगे को आएगा हमने उसको निगेटिव ले लिया। आप उल्टा भी मान सकते हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, आगे चले। चले, अब हम आते हैं रीजन नंबर 2 में। फॉर रीजन 2, एम्पीरियन पाथ देख लें। देखते हैं, ये आपका रीजन 2 है ना, ये वाला। अगर आप एम्पीरियन पाथ खींचोगे तो ये एम्पीरियन पाथ ऐसे होगा, है ना, यही तो। और आप अगर ध्यान से देखो तो इस एम्पीरियन पाथ के अंदर से, मान लो अभी आपका पी यहाँ है, तो इसके अंदर से क्या कोई करंट रील आउट हुई क्या? बोलिए, क्या इसने किसी करंट को घेरा क्या, इनक्लोज नो किया? सर। नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पर इस वाले केस में इतनी करंट घेर लिया, दो दो जगह की करंट को इसने इनक्लोज कर लिया, उसके बाद इसका करंट 0 हो गया। पर रीजन 2 के लिए एम्पीरियन पाथ encloses no current. Encloses no current, and hence close integration B dot dl is equal to mu naught into I, and I is equal to what? 0 here. So again, close integration B dot dl is equal to 0. So B is equal to 0. यानी रीजन नंबर 2 में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी। फॉर रीजन 3, जब हम रीजन 3 आएंगे तो देखिए, ये जो यहाँ पे ब्लू 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 कलर की लाइन दिखाई गई है, वो मैं ब्लू कलर की अगर लाइन खींच के दिखाना चाहूँ आपको, तो वो यहाँ पे होगी, इस जगह पे आपका पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इस जगह पे, और यहाँ पे होगा ब्लू कलर की लाइन। यानी आपका थोड़ा सा कलर ये कर देते हैं, ये रहा। अब अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, रीजन नंबर 3 में आपका पॉइंट लेते हैं, और इसकी डिस्टेंस को आप कैपिटल आर क्या लिया हुआ है, स्मॉल ए लिया हुआ है, तो इसके रेडियस को आप इसका रेडियस मानेंगे, बीचों बीच का जो रेडियस होता है, और फिर ये अंदर वाली करंट को इंक्लोज करेगा, बाहर वाली करंट को इंक्लोज नहीं करेगा। अभी क्या लिखेंगे, इफ या एम्पीरियन पाथ
will enclose current and hence closed integration B dot ds कितना, क्योंकि आपने बोला था कि नीचे वाली करंट प्लस होती और कितनी टोटल करंट है भाई, आपने बोला था ये ना, तो ये करेगा। आप देखिए मतलब कि इसके अंदर है, इसको छेद के रील करके थ्रेड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी आप बाहर करेंगे, क्लोज इसके बाद आप कह रहे हो कि इसकी जाएगा, और जब आप क्लोज सर्कल का सरकमफेरेंस, तो सर्कल का सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई आर, write it here as 2 pi a equal to mu naught capital N I. So B is N upon 2 pi A in I. Pi A will be